Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the mechanism of muscles contraction. Let's start. Now, dear students, the mechanism of muscle contraction. So here is our muscle fiber. Muscle fiber, and here is a motor neuron. Clear? So it's a motor neuron, and it carrying the nerve impulse. So here is formed. This is the neuromuscular junction. So the nerve impulse will travel in this way and reach the membrane of muscle fiber. This is the sarcolemma, the plasma membrane. So हमने बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, वो कोई आम मेम्ब्रेन नहीं है, ये डिफरेंट है दूसरों से. किस सेंस में? It has got transverse tubules in it, and there are thousands of transverse tubules. ये ऊपर जो आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सुराख नजर आ रहे हैं, these are called the tubules, or they are called the transverse tubules. T for transverse. Clear? Or thousands of T tubules together form T system. So what is T system? Thousands of the T tubules present in a muscle fiber or muscle cell. It is they together form a system which is called as T system. Clear? So we are moving at the level of muscle fiber, and each muscle fiber, it consists of many myofibrils. So these are myofibrils. Myofibrils. Clear? अब dear student, इसको जरा हम डिटेल में देखें. If we cut a section of this plasma membrane of the this muscle fiber or the sarcolemma, and see what is present inside. So what are these T tubules? What are they going to do this? Why they are present like this? इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा मैं. So ये ऊपर से जो एक सुराख नजर आ रहा है वो इस तरह से है कुछ. So now I am going to the level of myofibril. Clear? So dear students, this is the level of muscle fiber, and here I am moving at the level of myofibril. तो myofibrils मिलकर के क्या बनाते हैं? मसल फाइबर. तो ये ऊपर वही रहेगी मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको थोड़ा सा इस तरह से like this.
और ये मसल फाइबर के अंदर और if we move around like this, so we will see a lot of holes which are called the T tubules. ये वही वाले सुराख हैं, इसको यहाँ से हम सामने से कट करके देख रहे हैं कि ये एक्चुअली ये ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, T tubule. और here is our endoplasmic reticulum. So here we go. So this is the network. It's a network of channels called cisternae, endoplasmic reticulum. इसी तरह से यहाँ पर भी मौजूद है endoplasmic reticulum. And network of channels is there. और यहाँ पर these are the channels which are known as calcium channels. Over here as well. I'm just going to move on this side. The basic concepts definitely you have. I'm just going to revise this your concepts. अब डिफरेंस क्या है कि ये जो सा ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर. और इसके नीचे क्या पड़े हुए हैं, ये पूरा मसल फाइबर है. मसल फाइबर के नीचे क्या पड़े हुए हैं, मायोफाइब्रिल्स. अंदर इसके क्या मौजूद है, मायोफाइब्रिल्स हैं. तो दिस इज द this one is the terminal cisterna of sarcoplasmic reticulum. I'm just using its abbreviation, sarcoplasmic reticulum. और ये दरम्यान में ये क्या है, this is T tubule. और फिर ये क्या है, this is again the terminal cisterna of sarcoplasmic reticulum. फिर ये आगे टर्मिनल सिस्टर्ना, फिर ये आगे टी ट्यूब्यूल, फिर उसके आगे टर्मिनल सिस्टर्ना. इस तरह से ये तरतीब से जुड़े हुए हैं. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द टर्मिनल सिस्टर्ना ऑफ दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टर्मिनल का मतलब होता है जो एंड्स पे होंगे. ठीक है, दरमियान में ये पूरा उसका नेटवर्क है चैनल्स का, और एंड के ऊपर जो टर्मिनल सिस्टर्न है. सो दिस इज द टर्मिनल सिस्टर्ना ऑफ वन एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. In between is T tubule, and again on the left side is the terminal cisterna of this sarcoplasmic reticulum. So these three structures are collectively called as triad, and there are thousands of triad in a muscle fiber when it is cut longitudinally. तो ये इस तरह से मौजूद है, इस तरह से वक्फे में मौजूद है. हम सिर्फ एक को समझने के लिए, होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ. और here was the motor neuron. So as the motor neuron delivers the nerve impulse, तो जैसे nerve impulse आती है sarcolemma के ऊपर, so it moves down. It moves into these T tubules.
it moves into the T tubules. So this is the nerve impulse. This is the nerve impulse. For muscle contraction. और dear students, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो terminus sterna है, they have got a lot of calcium. The terminus sternae they have got stored. आपको बताया था कि ये आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होती है, and it is devoid of ribosomes. It is smooth endoplasmic reticulum. Clear? And these are the calcium ions. Calcium ions. Clear? और and this one, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, this one, these are the voltage sensitive calcium channels. Dear students, वोल्टेज सेंसिटिव है मतलब कि ये किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को. तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर, तो इट विल फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ द सार्कोलेमा. सो दिस इज सार्कोलेमा, और इसके नीचे पड़े हुए हैं मायोफाइब्रल्स इसके अंदर वाली साइड पे. सो ये मसल फाइबर, ठीक है, दिस इज, ये उसके ऊपर सार्कोलेमा, और ये रही टी टिब्यूल, ये रही टी टिब्यूल, ठीक है, ये टी टिब्यूल्स लाइक दिस. और इनके टर्मिनल सिस्टर्ने यानी कि जो होते हैं वहाँ पर स्टोर्ड कैल्शियम, और टर्मिनल सिस्टर्ने के साथ ये टी टिब्यूल और इनके साथ ये मिले हुए हैं कैल्शियम, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स. सो जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स along the length of the neuron, involving the movement of ions across the neuronal membrane and biochemical reactions. तो ये दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में कहेंगे तो नर्व इम्पल्स क्या है? इट्स अ करंट, इट्स एन इलेक्ट्रिकल करंट. तो जैसे करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वोल्टेज सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल्स हैं, दे विल ओपन अप. जैसे ये ओपन होंगे तो इनके टर्मिनल सिस्टम में क्या मौजूद है? कैल्शियम. सो दिस कैल्शियम एग्जिट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंटर्स इनटू द टी टिब्यूल. और टी टिब्यूल के अंदर ये जैसे पहुंचेगी, टी टिब्यूल्स के नीचे क्या मौजूद है? ये टी टिब्यूल्स, ये देखें, ये मेरा मसल फाइबर, ये दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज अ मसल फाइबर, ये इसके ऊपर ये सार्कोलेमा के ये मसल फाइबर है. तो ये इसके ये यूनिट्स क्या कहलाएंगे? मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल किससे बने हुए हैं? मायोफिलामेंट्स से. मतलब कि इनके अंदर क्या मौजूद है? एक्टिन एंड मायोसिन, यानी थिक एंड थिन फिलामेंट्स. तो ये ट्रांसफर टिब्यूल. तो जैसे ही करंट पहुंचा, ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, तो कैल्शियम इज रिलीज्ड इनटू द टी टिब्यूल. और टी टिब्यूल इसको अगर मैं नीचे से ऐसे उठाऊं तो उसके नीचे क्या पड़े हुए हैं? मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स मतलब कि दिस इज एक्टिन, and its active sites are covered with tropomyosin. और इसके ऊपर क्या मौजूद है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स. और इसके नीचे क्या मौजूद हैं? बहुत सारे ग्लोबुलर मायोसिन हेड्स. ये नीचे थिक फिलामेंट है. सो दिस इज अ थिक फिलामेंट. क्लियर? सो दिस आर द ग्लोबुलर हेड्स. This is M line. Let's suppose this is M line. तो ये कैल्शियम आई यहाँ से साइटोसोल में, यहाँ से रिलीज होकर कहाँ पे जाएगी? इनटू द साइटोसोल. साइटोसोल के नीचे क्या पड़े हुए हैं? द मायोफाइब्रिल्स. के ऊपर एक, दिस इज TNC, द ट्रोपोनिन C. कैल्शियम जिसके साथ बाइंड, जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर बाइंड करेगी, नाउ व्हाट विल हैपन? लुक, सो what is going to happen? Let's have a close look. So this is the actin, और ये इसके ऊपर से गुजर रही है ट्रोपोमायोसिन,
क्लियर? अब ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़। ये ऊपर कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम। सो कैल्शियम जैसे आकर अटैच होगी, सो द ट्रोपोनिन इट विल डिस्प्लेस द ट्रोपोमायोसिन, दिस इज ट्रोपोमायोसिन, एंड दिस इज एक्टिन, और ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक देखें इसके साथ एक्टिन के साथ अटैच है, दिस इज TNI, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, दिस इज TNT, और एक कैल्शियम के लिए TNC। तो जैसे ही ये अटैच होगा, कैल्शियम आकर यहाँ पर बाइंड करेगी, तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इट विल पुल द ट्रोपोमायोसिन। तो जैसे ये पुल करेगा इसको, तो नीचे है जी किसके ऊपर, इसके नीचे क्या थी, द एक्टिव साइट। हियर इज द एक्टिव साइट ऑफ, ये थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस हुआ, ये ऊपर मौजूद है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स हैविंग कैल्शियम। तो ये एक्टिव साइट एक्सपोज हुई, एक्टिव साइट जैसे एक्सपोज हुई, यहां पर उसके नीचे क्या मौजूद है, दिस इज द ग्लोबुलर हेड, ठीक है, दिस इज द ग्लोबुलर हेड। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे ही एक्टिव साइट एक्सपोज हुई, इससे पहले ये कॉक्ड पड़ा हुआ है। कॉक समझते, गन को कॉक करना, आप उसमें बुलेट को लोड करके रख देते हैं, ठीक है। आपने मैगजीन उसमें चढ़ाया, उसको पीछे उसको कॉक किया, अब जो गोली है वो लोड हो चुकी है, इसे कहते हैं कॉकिंग। इसी तरह से नॉर्मली रिलैक्स कंडीशन में ये कॉक पड़े होते हैं। कॉक का मतलब ये है कि ये ATP को हाइड्रोलाइज करेंगे और इट विल बी कन्वर्टेड टू ATP, ADP, और फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है, ये कॉक्ड है। जैसे इसको एक्टिव साइट नजर आई नहीं, ये ठक करके वहां पर जाकर बाइंड कर गया। इस वजह से इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज, क्योंकि इट इज अ क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। जैसे ये अटैच हो गया, अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ATP हाइड्रोलाइज फॉर्म में पड़ी थी, एनर्जी मौजूद है इसके पास, ये कॉक हो चुका है। जैसे गन लोड कर, आपने बुलेट को लोड कर लिया था, अब क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पुश द ट्रिगर, यू हैव टू जस्ट पुल द ट्रिगर। जैसे ही ये अटैच होगी, ये मायोसिन का हेड अटैच हुआ, इट विल पुल इनवर्ड्स, ये टुवर्ड्स द M लाइन, उसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करेगा, इस तरह की तरफ, और इट विल कॉज द कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन हो गई, अब ये यहाँ पर पहुँच गई है, ये ऊपर ट्रोपोमायोसिन, ये साथ में ये देखें यहाँ पहुँच गया, इसने ऐसे कर दिया, इसको पीछे की तरफ धकेला, ये M लाइन थी, ठीक है, और ये ऊपर उसी तरह से ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, अब इसको पीछे कर दिया। अब ये खुद से डिटैच नहीं हो सकता, ये इतना पावरफुल इनके दरम्यान में बॉन्डिंग होती है कि ये खुद से डिटैच नहीं हो सकता। अगेन देयर विल अनदर ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस फॉस्फेट इज रिलीज्ड। अब ये इससे जो एनर्जी हासिल होगी, दैट विल बी यूज्ड टू मूव इट बैक टू दिस पोजीशन। इस पोजीशन में बैक ले जाने के लिए एक और ATP हाइड्रोलाइज होगी, एंड इट विल मूव इन दिस पोजीशन अगेन, इस पोजीशन में। इसीलिए जब भी कोई शख्स मर जाता है, तो चूँकि रेस्पिरेशन तो हो नहीं रही, ATP का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ATP का लेवल कम होता है तो फिर जिस पोजीशन में बंदा लेटा होता है, आपको इसलिए कहते हैं जैसे कोई फौत हो जाए तो उसकी टांगें सीधी कर दो, उसके हाथ पांव सीधे कर दो, उसके जो चेहरा है वो काबे की तरफ कर दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, ATP की डेफिशिएंसी। जैसे जैसे ATP डेफिशिएंसी होगी, तो जो मसल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड रहा वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, क्योंकि इसको डिटैच करने के लिए क्रॉस ब्रिज को, इसके मायोसिन के हेड को एक ATP और चाहिए। जब ATP नहीं होगी तो जिस हालत में कॉन्ट्रैक्टेड था वो उसी हालत में रह जाएगा। अब जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं वो अब सीधा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं रिगर मॉर्टिस, दैट इज कॉल्ड रिगर मॉर्टिस। होगा क्या इसमें, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ATP आफ्टर डेथ द बॉडी स्टिफन्स, बॉडी सख्त हो जाती है। क्यों? बिकॉज द क्रॉस ब्रिजेस आर नॉट
detached. और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, इस एक साइकिल को करवाने के लिए कितने एटीपी इस्तेमाल हो रहे, एक यहाँ पर इसको कॉक करने के लिए और एक उसको उतरवाने के लिए. सो 2 ATP आर रिक्वायर्ड, 2 ATP फॉर 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. और जब ये यहाँ को उसको पीछे की तरफ खींचता है तो इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक. दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक. और जब इसको वापस उतरवाया जाता है इसे कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक. दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक. वापस जब मायोसिन इसने पकड़ खींचा, फिर जब डिटैच करवाया गया, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, फिर ये इस तरह से ये पकड़ता जाएगा, जैसे रस्सी को पकड़ कर ऐसे अंदर की तरफ खींचते जाते हैं. सो दिस इज हाउ दे विल यूज. और डियर स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पर नर्व इम्पल्स आती है एक मसल फाइबर में, तो सब के सब myofibrils they will participate in the contraction of the muscle. ठीक है, तो या तो सब के सब myofibrils कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई myofibril कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. That is called as all or none principle. क्लियर. और एक मोटो न्यूरॉन जो मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, जितने भी मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ मोटर यूनिट. ठीक है. So this is how the muscle contraction occurs. So dear students, let's have a quick quiz for today's lecture. So first of all, the actin and myosin both are present at the level of. आपने डायग्राम देखी डिटेल के साथ और उसमें मुझे बताएं एक्टिन और मायोसिन दोनों किस लेवल के ऊपर मौजूद हैं. ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड और सार्कोमेर, यानी दोनों जहां पर इकट्ठे हों वो कौन सा लेवल है यहाँ पर. सो दैट इज ए बैंड. याद रखिएगा. ठीक है, ए बैंड के लेवल के ऊपर, डार्क बैंड के लेवल के ऊपर दोनों हल्के से, ये थिक फिलामेंट और उसके नीचे ये थिन फिलामेंट, स्लाइटली अ लिटिल बिट देयर. ईच थिक फिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ डैश मायोसिन मॉलिक्यूल्स. सो द आंसर इज 300. The nuclei of skeletal muscle fiber are dash in shape. So they are spherical, oval, lobed or triangular. Answer is oval. The diameter of thick filament is, thick filament means the myosin filament की यहाँ पर बात हो रही है. Its diameter is 16 nanometers. The sliding filament model was presented by A.F. Huxley and H. Huxley in dash. So they presented in 1954. The G-actin of actin filaments are dash shaped, heart, lungs, kidney or liver. So they are kidney shaped. Which one of the following is not related to troponin complex? TNI, TNG, TNT and TNC. So I for inhibitory, T for tropomyosin, C for calcium, and this is nothing. So this is not related to the troponin complex. So the connective tissue present over each fascicle is called epimysium, perimysium, entomysium or periosteum. So it is perimysium.